This is lecture number 7 actually, and then for the AI part, this is lecture number 3. Uh, and this is a very interesting Dunning-Kruger effect. Like the researchers, they have figured out कि लोग, how the confidence and the experience they play with each other, like and usually people would perceive that as you keep getting more and more experience, you get more and more confidence. Also it is true for anything that you are doing. Usually confidence and experience, we say, are directly proportional to each other. This is a perception, but actual studies have shown that it is actually like this, that and especially with AI, कि अगर आपने सिर्फ AI का वर्ड सुना हुआ है and you think that wow, AI is good and you have a lot of confidence in applying AI almost to everything, but once you start knowing about AI, फिर आपका confidence shatter होना शुरू हो जाता है organizations का भी, कि यार ये कोई आसान चीज़ नहीं है ये तो, ठीक है. तो ये आपका कॉन्फिडेंस शटर होना शुरू होता है यहाँ पे, और यही सबसे मुश्किल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लोगों के लिए, दिस इज़ अ डेथ वैली, एंड यू गॉट टू समहाउ कम आउट ऑफ इट टू रियली गेन व्हाट एआई कैन डू फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर इंडिविजुअल्स. सही है. तो ये डेंजर जोन है उसका, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि वंस यू आर गेटिंग more experience, so here it is something very exciting, and then something which perhaps is not for me, and then you got to get out of this to be an expert and to have more confidence in artificial intelligence. So or then there is a term which is called alpha term. Alpha, इधर एक हमारा वो incubation center भी है which is called alpha, ठीक है. सो अल्फ़ा टर्म ये है कि आपका जो मैक्सिमम रिटर्न आना जब शुरू हो जाए, इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा. अल्फ़ा इफेक्ट जो है कि फॉर सम हाउ योर एबिलिटी टू बीट द मार्केट और एसोसिएटेड विद एक्सेस रिटर्न और एबनॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू जस्ट गेट दिस, स्पेशली दोज पीपल हु आर इन बिजनेस. They try to get this alpha effect. That what is something that can give them this alpha effect? क्या चीज़ है जो कि आपको एक alpha effect दे सकती है, जिससे आपके जो return है वो excessive returns में change हो जाए. And anybody who is business or even otherwise is after this alpha effect, ठीक है. और ये हम examples भी लोगों की देते रहते हैं. Those who are successful, they usually get into the. ये दुनिया में ना एक चीज़ चल रही है, हम अभी इधर खड़े हुए हैं पाकिस्तान के, जो रिच पर्सन इज़ द वन हु हैज़ मोर एसेट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लॉट्स हैं, कोई कमर्शियल प्लॉट है, किसी का रेजिडेंशियल प्लॉट है, दैट्स हाउ वी गेज आवर एसेट्स, कि आपके पास फिजिकल, आपके पास क्या चीज़ इन अबंडेंस है, या व्हाट डू हैव as a physical thing that is measurable, ठीक है. May it be gold, may it be plots, may it be anything in your inventory, and we say that you are rich. But दुनिया यहाँ से आगे निकल के इधर आ गई, जहाँ पे उन्होंने कहा जी IP, intellectual property, that something that you can create using your intellect, and richest people in the world are those who are intellectually very capable, ठीक है. एलन मस्क का कह रहे हैं $3 trillion उसकी वर्थ हो जाएगी, ठीक है. Just his brain power, basically, that how he can perceive and create intellectual property. So is Microsoft, so is Google, so is Facebook, so is Oracle, so all these are. अब ये दुनिया तीसरी जगह पे जा रही है, जहाँ पे वो कहते हैं डेटा इज़ गोल्ड. वहाँ पे they want to just make use of the data and to do the prediction, to do and to train the models, even simple to train the models. See, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी स्टडी थी जो मैंने देखी कि यूके की जो जीडीपी थी फ्रॉम 1270 से लेकर अबाउट 1800 तक, वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से वेरी लिटिल इंक्रीज इन द जीडीपी पर कैपिटा. ओके, दैट्स हाउ इट वाज गोइंग, एंड देन समथिंग हैपेंड. ओके,
So and something happened and where it just एक exponentially इसने grow करना शुरू कर दिया. इंडिया की भी ऐसे ही है ऑलमोस्ट एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दिस थिंग. कंट्रीज आर लुकिंग के व्हाट इज दिस दैट कैन जस्ट रैम्प योर जीडीपी पर कैपिटा. और अगर आप इसको मैप करेंगे ना, सो दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस इज द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस इज द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इज ऑल अबाउट AI, IoTs और सारा साइबर फिजिकल सिस्टम वी कॉल देम. So and हमने इन चीज़ों से फ़ायदा ही नहीं उठाया. We have never actually used the first or second or third industrial revolution, and then people want के at least we should use the catch up the fourth industrial revolution. And so that's something which brings us to this lecture. That first alpha effect, number 2 is assets, उनकी nature change हो रही है, and number 3 is like how the world and the countries have turned around themselves using technology. AI definitely is something which has this capacity. तो उसमें we will continue learning about AI, but today I want to do some hands-on. अगर आप लोगों के पास लैपटॉप वगैरह हैं तो we'll do some hands-on learning as well. और उसमें हम hands-on learning में देखेंगे कि how you do the prompt engineering, how you talk to AI, how AI can do things for you. उसमें हम ChatGPT, Gemini, Copilot, इन चीज़ों को we learn about this, and also we'll talk a little about the localized LLM which is Llama 3. तो ये primarily this is what I intend to do today. So in the continuation of what we have been doing, अगर yeah, so if you remember that we said AI is big thing, and within AI is machine learning, within machine learning is deep learning, within deep learning is generative AI, and within generative AI is LLM. तो इस तरह से ये चलता है कि generative AI जो है वो सबसेट है deep learning का. And so we need to learn about okay, what deep learning is. Then within deep learning and natural language processing, NLP is our large language model. जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो excitement है वो large language models की है. So that's something that we will learn today, and this is subset of deep learning. ये एक बड़ा मशहूर आदमी है एंड्रयू NG, जो कहता है AI is the new electricity. Okay, so it can basically lit everything. So और ये उसकी वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बात करता है कि AI की जो वैल्यू फ्रॉम AI टेक्नोलॉजी जो है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ना यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरवाइज्ड लर्निंग. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिव AI, और ये बहुत छोटा सा डॉट है जिस पे लिखा हुआ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक है, ये AI के डिफरेंट टाइप्स हैं. तो इनके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चीज़ है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है. नॉट द लार्ज लैंग्वेज मॉडल, नॉट द जनरेटिव AI. सो मैं एक और कोर्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम जनरेटिव AI को यूज़ करके सुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज़ लाइक मोर लाइक फन के हाउ यू कैन यूज़ द जनरेटिव AI टू हेल्प यू टू गेट इनटू दिस सर्कल. तो AI की अगर आप जस्ट फॉर अ लेमैन पर्सपेक्टिव इफ़ यू कैटेगराइज AI, सो एक AI वो है जिसमें आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है. सुपरवाइज लर्निंग में एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, वो आपको डेटा को लेबल करके देता है. ओके, विदाउट दैट AI यू कैन नॉट ट्रेन योर AI मॉडल. ओके, AI रिमेंबर इज अबाउट मॉडलिंग, यू हाउ टू यू मेक अ मॉडल दैट इफ़ यू फीड इन डेटा तो विल टेक डिसीजन फॉर यू. सो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल एक दी थी जो हमने ECG मशीन बनाई थी, लेकिन ये लेबल डाटा होता है, इससे आप अपना मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं. जब मॉडल ट्रेन हो जाता है उसको टेस्ट करते हैं. तो पार्ट ऑफ द डाटा, लेबल डाटा, यू कीप इट फॉर द टेस्टिंग. जब आपको लगता है कि तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं. ओके, अब ये डिप्लॉय हो जाता है और ये खुद से अपने डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं. ओके,
इसकी एक एग्जांपल मैंने ये ECG मशीन बताई थी, ये हमारे वो एक्सपर्ट्स थे, ही इज़ कार्डियोलॉजिस्ट इन शिफा एंड ही इज़ द सर्जन जनरल इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजिस्ट who help us to make this ECG machine which can automatically figure out arrhythmias in an ECG. तो उन्होंने AFIC में एक ICU में कोई 6 महीने लगाए रखी, उसको टेस्ट किया अच्छी तरह से. Once he was happy, then he said okay now it can be deployed. ये AFIC में लगी हुई है. ठीक है, तो ये साइकिल से सारे गुजरी. पहले getting him, he taught us that how they read ECGs, then extracting features, training a model, coding that model into an actual machine, then letting the machine to take ECGs and also take the decision कि इस ECG में क्या मसला है. तो इसके मुकाबले में जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसमें सिर्फ आप डाटा दे देते हैं एंड इल जस्ट ट्राई टू जस्ट क्रिएट अ मॉडल फ्रॉम द डाटा. किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बस डाटा की ज़रूरत होती है. इसकी मिसाल डेंगू है हमारा, कि डेंगू जो है वो हर साल फैलता है. आपको तो फ्रॉम 2014 to 15 to 16 to 17 हर साल जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में एंड डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर. एक कराची से शुरू होता है, नीचे आता है मुल्तान की तरफ से. सो इट जस्ट ट्रेवल्स, नॉट एक्चुअली इट इज़ ट्रेवलिंग बट बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा मौसम से ताल्लुक़ है, तो उसी पर्सपेक्टिव से इसका स्प्रेड होता है. और आपको देखा होगा कि उन्होंने बताया होता है कि इस महीने में डेंगू के वो है आपको, एंड देन यू गॉट टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स. एंड सो वन टाइप ऑफ AI इज़ वेयर नोबडी इज़ लेबलिंग इट, यू जस्ट गेटिंग डाटा एंड थ्रोइंग इट ऑन द मैप एंड आपको खुद नज़र आना शुरू हो जाता है कि किधर आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस महीने में आ रहा है. सो यू कैन गेन लॉट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम जस्ट द डाटा दैट यू पुट ऑन टू your system and you can learn a lot. And then you put other type of data as well. जैसे हमने डेंगू में हमने सीखा कि अमेजिंग कि जहाँ मेट्रो का प्रोजेक्ट जाता है उधर डेंगू जाता है. लाइक मेट्रो लाहौर में था, फिर मेट्रो मुल्तान में गया, फिर मेट्रो पिंडी में आया, फिर मेट्रो पेशावर में गया, जिधर जिधर गया साथ साथ डेंगू लेके गया. नॉट कि इट वाज टेकिंग डेंगू, लेकिन वो इतने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, डिगिंग करते हैं, पानी आता है और उससे फैलना शुरू करता है. मजदूर होते हैं, बाहर सो रहे होते हैं, यू नो. सो दैट्स समथिंग वी कुड एबल टू इन्फर दैट डेंगू इज रिलेटेड टू अ लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अ सिटी, अगर आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए हुए उसके लिए. अच्छा, दूसरी AI वो होती है जहाँ पे आपको लेबल डाटा की ज़रूरत, एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेबल डाटा फिर भी चाहिए होता है. ठीक है, और इसको हम कहते हैं डीप लर्निंग. इसके लिए बहुत सारा डाटा चाहिए होता है बिकॉज यू वांट के एक्सपर्ट को आपने निकाल दिया, कोई नहीं आपको सिखा रहा, आपके पास सिर्फ एक लेवल डाटा है और उससे आप मॉडल को ट्रेन करते जा रहे हैं. ओके, बट यू रिक्वायर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड टू मेक द डीप लर्निंग मॉडल टू लर्न. यहाँ पे जो एंड्रयू एंजी है ना, वही कहता है कि दुनिया में अब जो फ्यूचर ऑफ वर्क है ना वो इस तरह का है. This is also a very interesting slide about AI. This is the future of work. ये था जब आपका कोई एक एप्लीकेशन बनाई जाती थी और उसी की वैल्यू बिलियन ट्रिलियन डॉलर हो जाती थी. लाइक फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है. ठीक है, सो ऑल दीज आर जस्ट वन एप्लीकेशन एंड हैविंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑन इट. तो वैल्यू जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की पहुंच जाती थी. ये है जहां पे आपकी वैल्यू इज वेरी लिटिल. ओके, टेल है एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग टेल, दिस विल नेवर एंड. जहां पे एप्लीकेशन ऑफ AI हमें ढूंढनी है कि आपकी इंडस्ट्री, आपके अराउंड एक कुलचे लगाने वाला, समोसे तलने वाला, यू नो. सो एवरीवेयर यू कैन अप्लाई AI एंड स्पेशली सुपरवाइज लर्निंग. अगर आपके पास डेटा आया, व्हाट AI हैज डन इज कि इट हैज इनेबल्ड पीपल के 1 मिनट में एप्लीकेशन बना के आपके पास डाटा है बहुत सारा, आप बनाएं, उससे मॉडल ट्रेन करें और उसको चला दें. अब ये कल रात ही मैं बैठ के आई वॉज जैसे एक और मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक मॉडल ट्रेन कराया, AI से ही सारा जनरेट कराया. ठीक है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन इट, आई जस्ट आस्क, इसको प्रॉम्प्ट दी मैंने कि यार मुझे ना एक ये है 0 से लेकर 10 तक अल्फ़ाबेट्स को मैंने ट्रेन करना है, उसके लिए मुझे मॉडल बना दो. ठीक है, इसने सारे मॉडल क्रिएट कर दिया AI ने. मैंने इसको मॉडल को पकड़ा और इसके ऊपर रन कर दिया. ठीक है, इसने मॉडल चला के मुझे बता दिया कि इसने डाटा के ऊपर 100% एक्यूरेसी गेन कर लिया विद ट्रेनिंग. इट टेक्स दिस थिंग सम टाइम बट इट हैज़ ट्रेन्ड द मॉडल. राइट,
अब वो जो मॉडल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब AI इतनी आसान हो गई है कि अगर आपके पास डाटा है जिस पे एनोटेशन हुई भी है, तो आप AI को बताएंगे मुझे मॉडल बना दो जो कि इस डाटा से क्लासिफिकेशन कर सके, वो खुद ही डाटा बनाएगा, खुद ही ट्रेनिंग करेगा, खुद ही सारा निकाल के आपको कहेगा ये है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो दैट इज़ द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच as a leader or as somebody who is working anywhere should look into। तो ये सुपरवाइज लर्निंग जो पहले कोई 10 लोगों की टीम चाहिए होती थी, 1 महीना सिर्फ डाटा को लेबल करते थे, 4-5 महीने मॉडल को ट्रेन करने में लगते थे आपके, और फिर तकरीबन 1 साल का प्रोजेक्ट होता था AI का, ठीक है। इट वुड टेक पीपल 1 year टू डेवलप अ प्रोजेक्ट ऑफ AI। नाउ इट कैन बी develop in minutes। That is the power which is enabling organization to turn around। क्योंकि 1 मिनट में चीज़ हो जाती है, आपको थोड़ा सा सीखना है, 1 मिनट में चीज़ बन जाएगी आपके लिए, आप उसको पकड़े लगाए चला दें बस। डिप्लॉयमेंट। सो डोंट फाइंड आउट प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप कहें मैं दुनिया बदल रहा हूँ, नहीं भाई, बहुत छोटी प्रॉब्लम जो आपको नजर आ रही है, आप कहें अच्छा ये मैं कर देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, हर चीज़ ऐसे हो जाती है, ठीक है, छोटी। जैसा मैंने कहा तंदूर में उसने नान ही देखना है सही पक्का है कि नहीं पक्का है, से यू कैन से यार मैं छोटा सा कैमरा लगा देता हूँ, मॉडल ट्रेन कर दूंगा, तुम्हें पता लग जाएगा जल्द। तो अगर ये